السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ علاقائی تحریک کے دوران IAS اور IPS عہدیداروں کے صبر و تحمل کی ستائش، کلکٹرز کانفرنس سے وزیر داخلہ کا خطاب۔ بلدی حدود میں سرکاری اراضیات کے لیے 25 کروڑ روپے کی اجرائی، مجالس مقامی کے انتخابات کے لیے تیار رہنے کلکٹرز کو وزیر مال کا مشورہ۔ کلکٹرز کانفرنس میں باہر کی باتوں پر توجہ نہ دے کر کھل کر بات کرنے وزراء کو چیف منسٹر کا مشورہ۔ میئر کے استعفے کی منظوری کے لیے 17 دسمبر کو بلدیہ کا خصوصی اجلاس، ڈپٹی میئر بعد نماز جمعہ استعفیٰ دیں گے۔ اور بات چیت کے لیے جمع ہونے والے کاروباریوں پر SR نگر SI کا لاٹھی چارج، مجلس کے احتجاج کے بعد SI کے خلاف مقدمہ درج۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مکہ مسجد بم دھماکہ کیس میں غیر ضروری طور پر گرفتار کیے گئے مظلوم نوجوانوں نے معاوضے کی ادائیگی سے متعلق حکومت کے اعلان پر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے مجلسی ارکان اسمبلی کے ساتھ چیف منسٹر سے ملاقات کی۔ 18 مئی 2007 مکہ مسجد میں ہوئے دہشت گرد حملے میں، جس میں مسلمانوں ہی کی جانیں گئی تھیں، مسلم نوجوانوں کو ہی مشتبہ قرار دے کر گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر بلا کسی ثبوت کے مختلف الزامات لگائے گئے تھے۔ پولیس کی اس ایک طرفہ کارروائی کے بعد کئی نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ ان نوجوانوں کو نہ صرف ذہنی اذیت پہنچی بلکہ بعض کو جسمانی اذیت بھی پہنچائی گئی۔ سماج میں ان پر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ ہمارے ہمت ہی نہیں تھی کچھ، کیا زندگی کا کیریئر سب ختم ہو گیا، زندگی اس میں بول کے بھروسہ نہیں تھا۔ ایسا ہو گیا تھا کہ کیا گناہ کرے تھے کہ اللہ تعالیٰ لا کے اس میں ڈال ڈالا۔ بہت متاثر ہوا سر، کوئی نزدیک آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمارے دوست رشتہ دار قریبی بھائی ایک دم گھر کو آنے ڈر رہے تھے، کہاں ان کو پکڑ لیتے کہ ایک دو پولیس والوں کو تو بٹھا کے رکھ دیے سر، کوئی آنا نہیں جانا نہیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے اب ایسا نہیں ہے پہلے کے ایسا، اب تو بہت سکون ہو گیا، اللہ کا کرم ہوگا۔ اس دہشت بھرے ماحول سے کیا آپ لوگ، آپ کے افراد خاندان نکل پائے ہیں ابھی تک؟ نہیں ابھی تک تو نہیں ہوا۔ ایک دوست کے تو اندر ہی والد صاحب کا انتقال ہوگا، اندر تھے جا کے مل بھی نہیں سکے۔ ایک 2 سال 1.5 سال کے بعد میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہوگا۔ لیکن جب تحقیقات آگے بڑھیں تو پتہ چلا کہ اس واقعے میں ہندو دہشت گردوں کا ہاتھ ہے۔ اس حقیقت کا انکشاف ہوتے ہی مجلسی قیادت نے حکومت اور پولیس کو جھنجھوڑنا شروع کیا اور اس یک طرفہ اقدام کی نہ صرف سختی سے مخالفت کی بلکہ حکومت کو معافی چاہنے پر مجبور کر دیا۔ We are also concerned about the innocent people. If anyone has been booked, not only Muslim youth, on anyone, it is not correct on the part of the government. ఏదైతే తప్పు లేకన్నా ఒకవేళ పోలీసు అటువంటిది ఏమన్నా చేసింటే బేషరతుగా అందరికీ కూడా మేము క్షమాపణ చెప్పేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। బేషరతుగా అందరికీ కూడా మేము క్షమాపణ చెప్పేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। బేషరతుగా అందరికీ కూడా మేము క్షమాపణ చెప్పేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం۔ یہ ایک تاریخی اقدام تھا کہ حکومت نے ایوان اسمبلی میں کھلے عام معذرت خواہی کی۔ پھر مجلسی قیادت نے اس بات پر زور دیا کہ محض معذرت خواہی داغوں اور دکھوں کا مداوع نہیں ہے بلکہ تمام جھوٹے مقدمات اٹھا لیے جائیں اور جن معصوموں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا انہیں معاوضہ بھی دیا جائے۔ مجلسی قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کے متاثر کن استدلال کو قبول کرتے ہوئے حکومت نے معاوضے کا بھی اعلان کیا۔ چنانچہ حکومت کے اس اقدام پر متاثرہ نوجوانوں نے مجلسی قائدین کے ہمراہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے ملاقات کی اور ان سے اظہار تشکر کیا۔ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے اس وفد کی قیادت کی۔ اراکین اسمبلی احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان، افسر خان، وراثت رسول خان، احمد بلالہ اور معظم خان کے علاوہ پولیس ظلم کا شکار 20 تا 22 نوجوان اس وفد میں شامل تھے۔
रियासत में अमन व कानून की बरकरारी से ही तरक्की मुमकिन है। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर मुनक़िदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला सबिता रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने इजलास में रियासत के IAS और IPS ओहदेदारों की कारकर्दगी की सताइश की है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 6 से 7 साल के दौरान रियासत में जितने भी तरक्याती और फलाही काम हुए हैं उसमें IAS और IPS ओहदेदारों का अहम रोल रहा है। सबिता रेड्डी ने कहा कि इलाकाई तहरीक के दौरान रियासत में अमन व कानून की बरकरारी में ओहदेदारों ने सब्र व तहम्मुल का जो मुजाहरा किया है वो काबिल सताइश है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के हवाले से कहा कि ज़िले सतह पर उभरने वाले मसाइल से अगर बर वक्त निपटा जाए तो हालात बिगड़ने से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलिज्म के मसले को ख़त्म करने में पुलिस की खिदमात नुमायां रही हैं। इसके अलावा हुकूमत के बहबूदी प्रोग्रामों को आवाम तक पहुँचाने में IAS ओहदेदारों का अहम रोल रहा है। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों से पड़ोसी रियासतों में जारी माओइस्टों की सरगर्मियों से चौकस रहने की हिदायत दी। सबिता रेड्डी ने कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है और किसी भी छोटे वाक़े पर गफलत नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने बताया कि रियासत में इस तरह की सरगर्मियों से निपटने के लिए ही ऑक्टोपस और NSG का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर दाखिला ने ज़िले सतह पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट को कारकर्द बनाने और ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम की रोकथाम के लिए इक़दामात करने पर जोर दिया। आखिर में चीफ मिनिस्टर ने रियासत के वक़ार को बुलंद करने के लिए ओहदेदारों से चौकस और मुतहर्रिक रहने की दरख्वास्त की। జిల్లా స్థాయిలో ఉన్న ఎస్పీస్ కానీ సిపిస్ కానీ కలెక్టర్స్ కానీ ప్రభుత్వ పనితీరు అక్కడున్న ఈ అధికారుల వలన రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ప్రజలు ఏ చిన్న సమస్యతో వచ్చినా కలెక్టర్ గారు కానీ ఎస్పీస్ కానీ చొరవ తీసుకుంటే పరిష్కరించలేని సమస్య ఏది లేదని ముఖ్యమంత్రి గారి మీటింగ్ లో ఒకసారి గుర్తు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నక్సలిజం విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలతో పాటు పోలీస్ అధికారుల పనితీరు వల్ల ఈ రాష్ట్రంలో నక్సలిజాన్ని అదుపులో పెట్టగలిగాం. అంటే అక్కడున్న ప్రజలకు వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అందించడంలో కానీ అక్కడున్న ప్రజలకు కావాల్సిన ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంలో కానీ సక్సెస్ఫుల్ గా రాష్ట్ర అధికారులు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఈ నక్సలిజాన్ని రాష్ట్రంలో అదుపు చేయగలిగాం. बलदी हुदूद बिलखुसूस हैदराबाद में मुख्तलिफ अराजियात की निशानदही करते हुए उसकी हिसारबंदी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कलेक्टर्स इजलास के दौरान मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि दीगर बलदी हुदूद में भी इस पर अमलावरी की हिदायत दी गई है। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि इदाराजात मकामी के इंतखाबात के लिए भी कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि पीने के पानी, बरखी और सफाई के मसले पर स्पेशल ऑफिसर्स के साथ इजलास तलब करते हुए जायज़ा लेने की हिदायत दी गई है। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि हर कलेक्टर को किसी मखसूस दिन अवामी शिकायत की समाअत करने की भी हिदायत दी गई। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की नई अराजी हुसूल पॉलिसी का तरमीम शुदा मसवदा भी कलेक्टर्स के हवाले किया गया और इस सिलसिले में कलेक्टर्स को 15 दिन के अंदर अपनी तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी गई ताकि हुसूल अराजी पॉलिसी को क़तईयत दी जा सके। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में जल्द ही कुछ जमाती इजलास भी तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो सरकारी अराजियात अलॉट की गई हैं अगर वो इस्तेमाल में न हो या फिर अराजी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर माल ने बताया कि VRO और VRA की जायदादों के लिए एलामिया जारी हो चुका है और अगर इम्तिहानात और तकर्रुरात के दौरान किसी भी तरह की बेकायदगी की शिकायत मौसूल होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर माल ने बताया कि चित्तूर में मी सेवा प्रोग्राम का बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आया है और हुकूमत दीगर अजला में भी इस प्रोग्राम को जल्द शुरू करेगी। इजलास में आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया गया। అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో కూడా భవిష్యత్తులో ఏమాత్రం అన్యాక్రాంతం కాకుండా ఆ భూములు ప్రొటెక్ట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. కలెక్టర్లు మీరు స్పెషల్ ఆఫీసర్లుగా ఉన్నారు, మన ఆర్డీఓలు మిగిలిన సీనియర్ అధికారులు స్పెషల్ ఆఫీసర్లుగా ఉన్నారు. మున్సిపల్ కమిషనర్లతో కూడా మీరు సమన్వయం చేసుకొని వెంటనే అటువంటి స్థలాలను గుర్తించి మ్యాపింగ్ చేయండి. दो रोज़ा कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वज़रा को खुलकर बात करने का मशवरा दिया है। वज़ीर आला का कहना था कि हम यहाँ पर तामीरी मुबाहिस के लिए आए हैं।
उन्होंने वज़रा से बेबुनियाद चीज़ों से एहतराज़ करने का मशवरा दिया। वज़रा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में जो हो रहा है उसे मीडिया की जानिब से गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि आप खुलकर बात करें, बाहर की बातों पर तवज्जो न दें। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन में शिरकत से रोक देने पर बाज़ वज़रा को शदीद मायूसी हुई। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में लॉ एंड ऑर्डर के सेशन के दौरान वज़ीर दाखिला को ही दाखिले की इजाज़त थी, लेकिन जब दूसरे वज़रा इसमें शिरकत के लिए पहुंचे तो उन्हें बाहर जाने को कहा गया। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर को इस बात की इत्तला दी गई थी कि पुलिस ओहदेदारों के साथ होने वाले इजलास में तेलंगाना तहरीक के दौरान दर्ज किए गए मुकदमात के अलावा रियासती वजीर शंकर राव उनके मसाइल को भी उठाने वाले थे। इसी वजह से कई वज़रा को शिरकत करने से रोक दिया गया। इस मौके पर वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी ने कहा कि वो 10 साल से महकमे ज़राअत के वजीर हैं और कई कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं, लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर इजलास में सिर्फ वज़ीर दाखिला को इजाज़त होती है, इसलिए उसमें किसी भी तरह के अफसोस की ज़रूरत नहीं है। रियासती वजीर डी.के. अरुणा ने कहा है कि वज़रा के दरमियान पेश आए मामूली वाक़े को बाज़ अखबारात बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ ओहदेदार अवामी मसाइल पर वज़रा को गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वज़रा के अंदर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और दीगर वज़रा के माबैन किसी भी किस्म के इख्तिलाफ की तरदीद की। वाज़ेह है कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और नागेंद्र में पहले दिन लफ्जी झड़प हो गई थी। रियासत में मजालिस मकामी के इंतखाबात के लिए हुकूमत तैयार है। रियासती वजीर महिदर रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत इन बलदियात के इंतखाबात 31 मार्च तक करवाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नई बलदियात के क़याम के साथ मौजूदा बलदियात के इंतखाबात मुनक़्क़िद करने में ताख़ीर हो रही है, लेकिन हुकूमत 31 मार्च तक रियासत के मजालिस मकामी के इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। महिदर रेड्डी ने कहा कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के बाद इस मसले पर गौर किया जाएगा और 3 ta 4 रोज में फैसला लिया जाएगा। The works of drinking water are the summer contingency plans, and the department is ready to issue the needed amount. Any specific decision taking about JHMC? It's not specific about JHMC. JHMC is also included. It's a part and parcel of the discussion. What about election about local bodies? The elections, we already informed to the press, media and to the public that we will. अजीम तर हैदराबाद की मेयर की हैसियत से कार्तिका रेड्डी के इस्तीफे की मंजूरी के लिए 17 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बल्दिया का खुसूसी जनरल बॉडी इजलास तलब किया गया है। इस इजलास से पहले जुमेरात के दिन मजलिस बलदी पार्टी का इजलास भी दारुस्सलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मजलिस के अरकान मुक़न्नना और कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। मजलिस के डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज भी 16 दिसंबर को बाद नमाज जुमा अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। 17 दिसंबर को मेयर और डिप्टी मेयर के इस्तीफे बलदिया के इजलास में कबूल किए जाएंगे, जिसके बाद नए मेयर और नए डिप्टी मेयर के इंतखाब का अमल शुरू किया जाएगा। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात खोलकर सामने आ गई है कि हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों का वज़रा को ही पूरा इल्म नहीं है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर देवेंद्र गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और वज़रा के दरमियान तालमेल नाम की कोई चीज़ नहीं है और कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में इंतज़ामिया पर चीफ मिनिस्टर की गिरफ्त की कलई खुल गई है। देवेंद्र गौड़ ने सवाल किया कि आम हड़ताल को ख़त्म हुए कई दिन गुजर जाने के बावजूद बरक़ी कटौती क्यों की जा रही है। देवेंद्र गौड़ ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार के हक़ से महरूम हो गई है। तेलुगु देशम के एक और लीडर एम नरसिम्लू ने टीआरएस सरबराह केसीआर और जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि केसीआर और कोदंडाराम को तेलंगाना से मुताल्लिक़ बात करने का अखलाकी हक़ नहीं है। एम नरसिम्लू ने टीआरएस कायदीन को निचली सियासत से बाज आ जाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेलुगु देशम सरबराह की यात्रा को रोकने की कोशिश की गई तो इसका जवाब दिया जाएगा। కేసీఆర్ గారి కోదండరామ్ గారికి తెలంగాణ గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదని మరొకసారి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ ప్రజల సమస్యలు పట్టించుకొని పనిచేస్తా ఉంటే పక్కదారికి వెళ్ళండి, మా దారికి రాబోకండి, మీ ఏదో జాగిరి కాదు, తెలంగాణ అనేటువంటిది అందరిది, ఏ ఒక్కరిదో కాదని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా।
నేను అసెంబ్లీలో కూడా తెలంగాణ తీర్మానం విషయంలో తీర్మానం పెట్టమని గవర్నమెంట్ మేము డిమాండ్ చేశాం. ఎవరన్నారు మీరు? एसआर नगर में ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों के साथ बातचीत की गर्ज से जमा होने वाले गरीब कारोबारियों पर एसआई गोविंद रेड्डी ने बिला वजह लाठी चार्ज कर दिया, जिसके खिलाफ मजलिस ने पीएस पर धरना दिया और गोविंद रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। अमीरपेट में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले गरीब व्यापारियों और 7 सीटर्स के ड्राइवर्स और ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों के दरमियान बातचीत के दौरान एसआर नगर पुलिस के मुकामी मजलिसी कारकुनों और गरीब अफराद पर गैर जरूरी लाठीचार्ज कर दिया। इत्तला मिलते ही अहमद पाशा खादरी वहां पहुंच गए और एसआर नगर पीएस पर सख्त एहतजाज करने के बाद सब इंस्पेक्टर गोविंद रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। तफसीलात के बामौजिब 2 दिन पहले अमीरपेट के ऑटो ड्राइवर और छोटे ताजरीन ट्रैफिक पुलिस की ज्यादतियों और गैर जरूरी चालानात से परेशान होकर दारुस्सलाम पहुंचे थे और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें तफसीलात बताई थी। अकबर ओवैसी ने रुकने असेंबली चारमीनार को वहां रवाना किया। अहमद पाशा खादरी ने मुकामी मजलिसी लीडर जीवी नायडू के हमरा आला ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों से बात की और ट्रैफिक पुलिस को तजवीज पेश की कि पुराने शहर की तरह यहाँ भी छोटे व्यापारियों के लिए लाइन्स बनाई जाएं और खिलाफ वर्जी पर चालानात किए जाएं। पुलिस ओहदेदारों ने इस तजवीज को कबूल किया और मजीद बातचीत के लिए एसीपी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर और दूसरे ओहदेदारों को तलब किया। अहमद पाशा खादरी ने मुकामी मजलिसी लीडर जीवी नायडू को मुज़ाकरात की जिम्मेदारी दी और वहां से रवाना हो गए। अभी बातचीत जारी ही थी कि एसआर नगर के एसआई गोविंद सिंह रक्षक गाड़ी में वहां पहुंचे और बाहर ठहरे हुए ताजरीन, ऑटो ड्राइवर्स और मजलिसी कारकुनों पर बिला किसी वजह के लाठीचार्ज कर दिया। इस जुल्म ज्यादती की इत्तला मिलने पर अहमद पाशा खादरी दोबारा वहां पहुंचे और एसआर नगर पीएस पर धरना दिया। उन्होंने पुलिस के रवैये पर सख्त बरहमी जाहिर की, जिसके बाद आला पुलिस ओहदेदारों ने माजरत खाही की। काती एसआई गोविंद सिंह के खिलाफ शिकायत को कबूल करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के पहले दिन इजलास में वज़रा और चीफ मिनिस्टर के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों को जाना रेड्डी ने बेबुनियाद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि वजीर अवामी मसाइल को लेकर नाराज हो सकता है, लेकिन शख्सी तौर पर किसी से नाराजगी या नाइत्तेफाकी की खबरें बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने मीडिया पर चीफ मिनिस्टर और वज़रा के दरमियान तलखियां पैदा करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया। एक और वजीर धर्मरा प्रसाद ने भी मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान कहा कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस सिर्फ हुकूमत के प्रोग्रामों पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए मुनक़िद की जाती है। इस इजलास में इख्तिलाफात की कोई गुंजाइश नहीं होती। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर पुन्नल लक्ष्मैया ने बताया कि हैदराबादी कंपनी वेडा इंस्टीट्यूट की जानिब से एक चिप तैयार की गई है जिसमें 2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इस चिप को जनवरी में होने वाले इंटरनेशनल VSLP कॉन्फ्रेंस में मुतारिफ किया जाएगा। उन्होंने इस चिप की तैयारी पर मसरत का इजहार किया। అందులో ఈ డిజైన్ విశేషాల గురించి సమావేశంలో ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో చర్చించారు. 2 బిలియన్ ట్రాన్సిస్టర్ సార్ ఇన్ దిస్ సార్ మేడా ఇన్స్టిట్యూట్ కాలేజీ కాదు మేడా ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే रियासती वजीर टेक्सटाइल्स शंकर राव ने वजाहत की है कि बुनकरों के मसाइल हल हो चुके हैं, इसलिए कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में उसे शामिल नहीं किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर रियासत में कोई बुनकर मसाइल का शिकार है तो वो उसके आगे सर झुकाने के लिए भी तैयार हैं। शंकर राव ने कहा कि बीजेपी बुनकरों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। GHMC की जानिब से आसिफ नगर में इन्हिदामी कार्रवाई शुरू की गई। जुमेरात के दिन करीब 10 दुकानों को सड़क की कुशादगी के मकसद से गिरा दिया गया। बल्दिया के ओहदेदारों ने मीडिया को बताया कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बल्दिया की जानिब से मुआवजे की रकम क़ब्ल अज़ वक्त अदा कर दी गई थी, जिसकी वजह से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया।
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर माजूरीन के लिए मंजूर करवाए गए माहाना वज़ाइफ के चेक्स रुकन असम्बली नामपल्ली विरासत रसूल खां के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर यासिर अरफात और अराकीन बल्दिया मोहम्मद गौस और जहरा बेगम मौजूद थीं। रुकन असम्बली ने कहा कि सैकड़ों की तादाद में वज़ाइफ मंजूर करवाए गए हैं, जिन्हें बहुत जल्द मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। तांडूर के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और तांडूर के उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज में मुस्तकिल असातिज़ा की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी करने की दरख्वास्त की। वफ्द ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर ही डिग्री कॉलेज की मंजूरी हासिल हुई थी। जगदीश मार्केट के मोबाइल फोन्स का कारोबार करने वाले पुलिस की हिरासानी पर दारुस्सलाम से रुजू हुए। रुकन असम्बली मौज़म खान ने इनसे बात की और आला पुलिस ओहदेदारों से राब्ता करते हुए गैर ज़रूरी हिरासानी बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने ताजरीन से भी कहा कि वो ट्रैफिक में खलल पैदा न करें। हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी नई फिल्म डॉन 2 की तशहीरी मुहिम के सिलसिले में नागपुर से हैदराबाद पहुंचे। शाहरुख खान ने जुबली हिल्स में प्रेस मीट से भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने फिल्म की खुसूसियात के बारे में बताया। बाद में वो मुंबई के लिए रवाना हो गए। डॉन 2 की नुमाइश 23 दिसंबर से शुरू होने वाली है। सालारजंग म्यूजियम के इंतजामिया ने 60 साल की तकमील के मौके पर एक साला तवील तकारीब मनाने का ऐलान किया है। बोर्ड मेंबर जाकिर हुसैन ने बताया कि ये एक तारीखी और मुनफरिद म्यूजियम है जहां दुनिया भर से सयाह विजिट करते हैं। उन्होंने कहा कि एक साला तकारीब के दौरान मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले और कल्चरल प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। नामपल्ली असेंबली हल्के के बलदी डिवीजन रेड हिल्स में मकामी मजलिस के ताउन से आरोग्यश्री हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन बल्दिया जहरा बेगम ने इफ्तिताह किया। रुजू होने वालों के तिब्बी मुआयने किए गए और उन्हें दवाएं मुफ्त फराहम की गईं। एसीपी आसिफ नगर की खुसूसी टीम ने अगवा किए हुए शख्स को 1 घंटे के अंदर अंदर आजाद करा के 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि चाशंबे और जुमेरात की शाम 10 अफराद ने मोहम्मद अफसर का अगवा किया था। अगवा से पहले ये लोग मोहम्मद अफसर के घर पहुंचकर उनकी जबरदस्त पिटाई की, फिर उन्हें लेकर फरार हो गए। इस वाक़े की बुनियाद दरअसल मोहम्मद अफसर के बहनोई शब्बीर खान के 210 गज के एक प्लाट की वजह बताई जाती है, जिसके लिए शब्बीर खान और उनके भाई सईद खान में तनाज़ा चल रहा था। शब्बीर खान सऊदी अरब में मुकीम है। सईद खान प्लॉट की निगरानी करने वाले मोहम्मद अफसर को रास्ते से हटाने के लिए ये हरकत की। मोहम्मद अफसर के भाई सर्कल इंस्पेक्टर आसिफ नगर मोहम्मद जावेद की अदम दिलचस्पी की वजह से एसीपी से रुजू हुए। एसीपी की टीम ने मोहम्मद अफसर को रेड हिल्स के एक मकान से छुड़ाकर 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। पीएचडी की एक तालिबा के साथ इस्मत रेजी की कोशिश करने वाले प्रोफेसर को उस्मानी यूनिवर्सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर यूनिवर्सिटी पुलिस मधु मोहन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उस्मानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रंजीत महांता ने मंगल की शाम पीएचडी करने वाली 25 साला खातून को कैंपस में वाक़े गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 6 में बुलाकर उसके साथ दस्त दराजी की कोशिश की, जिस पर वो मामूली तौर से जख्मी भी हो गई। इंस्पेक्टर ने मजीद बताया कि इससे पहले भी इस प्रोफेसर ने 2 तालिबात के साथ ऐसी ही हरकत करने की कोशिश की थी। पुलिस ने मुतासरा खातून की शिकायत पर दफा 354 और 499 के तहत केस दर्ज कर लिया और प्रोफेसर को अदालती तहवील में दे दिया। लाल बाजार की 2 दुकानों में एक ही रात के अंदर सरके की वारदातें अंजाम दी गईं। मलबूसात की दुकान के मालिक ने बताया कि चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब सारिक दुकान की छत में सब्बल से सुराख करके दाखिल हुए और 1,65,000 रुपए नगद रकम के अलावा करीब 70,000 रुपए के मलबूसात का सरखा कर लिया, जबकि इसी से मुत्तसिल एक ड्राई फ्रूट की शॉप से 2,000 रुपए नगद रकम के अलावा ज़ायद 4 किलो खुश्क मेवे चुरा लिए गए। वाज़ेह है कि चारमीनार पुलिस स्टेशन इन दिनों
इन दोनों दुकानों से कुछ ही फासले पर है, लेकिन सारिकों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो पुलिस स्टेशन के बगल में वाक़े दुकानों में तक चोरी करने से नहीं झिझकते। हजरत मीर बख्तियार अली शाह अबुलुलाई का उर्स शरीफ रियासत नगर में 13 और 14 दिसंबर को मुनक़िद हुआ। जनाब मीर मोहम्मद अली रशीद सजादा नशीन ने मरासी में उर्स अंजाम दिए। खबरनामा खत्म करने से पहले एक मरतबा फिर देखेंगे सुर्खियां। इलाकाई तहरीक के दौरान IAS और IPS ओहदेदारों के सब्र और तहम्मुल की सताइश, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से वजीर दाखिला का खिताब। बलदी हुदूद में सरकारी अराजियात के लिए 25 करोड़ रुपए की इजराई, मजालिस मकामी के इंतखाबात के लिए तैयार रहने कलेक्टर्स को वजीर माल का मशवरा। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में बाहर की बातों पर तवज्जो न देकर खुलकर बात करने वज़रा को चीफ मिनिस्टर का मशवरा। मेयर के इस्तीफे की मंजूरी के लिए 17 दिसंबर को बलदिया का खुसूसी इजलास, डिप्टी मेयर बाद नमाज जुमा इस्तीफा देंगे। और बातचीत के लिए जमा होने वाले कारोबारियों पर SR नगर SI का लाठीचार्ज, मजलिस के एहतजाज के बाद SI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।